موت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. کوئی گارنٹی ہے؟ دنیا میں آنے کی خبر تو 9 مہینہ پہلے مل جاتی ہے نا، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی ہے میرے بھائیو. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی؟ اب آپ منی من میں بولیں گے مولانا صاحب ہمارے جھارکھنڈ میں تو لوگ مرتے ہی نہیں ہیں. اچھا نہیں مرتے جھارکھنڈ میں لوگ؟ آپ کے علاقے میں لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ بھائی جواب دیجیے نا. اچھا مرتے ہیں. اچھا معاف کیجیے گا، میں سوچا نہیں مرتا ہوگا. اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیے. ابھی شادی نہیں کیا ہوں، شادی ودی کر کے یہی رہ لوں گا. کون مرنے کے لیے کٹیہار جانا چاہے گا؟ لیکن نہیں، موت تو آئے گی، ہر حال میں آئے گی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ صبح ہوگی، فجر کی نماز پڑھوں گا، سسرال جاؤں گا، دکان جاؤں گا، مارکیٹ میں جاؤں گا، بازار جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ایگزام دینے جاؤں گا. لیکن میرے بھائیو، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میرا کل کا پروگرام کہاں ہے؟ آج معاف کیجیے گا، میرا آج پروگرام ہے کھڑگپور سے لگ بھگ 70 یا 80 کلومیٹر کی دوری پر. اڑیسہ، شاید وہ مدناپور اڑیسہ کے بارڈر ہوں گے. آج میرا پروگرام ہے. امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل آج تنویر صاحب آئیں گے تو ان کی تقریر سنوں گا. لیکن میرے بھائی کیا میں ان لوگوں کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ہاں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا؟ گارنٹی دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہاں سے پروگرام کر کے میں نکلوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کر میری موت کی خبر آپ تک پہنچ جائے. آپ نے دیکھا نا عبدالرحمن ساجدی، اللہ ان کی گناہوں، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پروگرام سے جا رہے تھے، کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی؟ آج کا پروگرام، آج کا جلسہ میری زندگی کا آخری جلسہ ہوگا؟ کیا اس نے کبھی سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا. میرے بھائی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ موت آئے گی، یہ حق ہے، ہم جانتے ہیں آئے گی، اس کو بھی لے کر کوئی شک نہیں ہے. اور کب آئے گی ہے یہ ہمیں علم نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر شاید موت سے کوئی بچ پاتا تو ہمارے نبی ہوتے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہمارے نبی کے پاس بھی موت آئی. یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگوں نے، چند مسلمانوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ نبی کے پاس موت نہیں آئی، یہ الگ بات ہے. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ نبی کے پاس بھی موت آئی. انک میت و انہم میتون، جو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور جن کی طرف آپ بھیجے گئے انہیں بھی مرنا ہے. تو میرے بھائیوں، پہلی چیز موت سب کے پاس آئے گی. دوسری چیز پر ذرا غور کیجیے. لیکن یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے، آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ مولانا تنویر صاحب چلیے آپ کی بات سے سہمت ہوں، اس لیے کہ آپ قرآن سے یہ دلیل دے رہے ہیں موت سب کے پاس آئے گی، مرنا سب کو ہے. چلیے اس بات سے میں سہمت ہوں، لیکن مولانا تنویر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا. اب آپ پھر مجھ سے سوال کر رہے ہیں مولانا تنویر صاحب، ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستی کے اندر، اس محلے کے اندر، گاؤں کا نام بڑا سریا، بڑا سریا گاؤں کے اندر، بات کو سمجھیے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ رات کافی ہو چکی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. بڑا سریا گاؤں کے اندر 2 آدمی ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے. ایک آدمی حرام کھاتا ہے، دوسرا حرام نہیں کھاتا. ایک سودی کاروبار کرتا ہے، دوسرا سودی کاروبار نہیں کرتا. ایک آدمی نے دنیا بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش، یعنی دنیا بنانے کے لیے ہمیشہ لگے رہے، اور ایک آخرت بنانے کے لیے ہمیشہ لگے رہے. ایک اللہ کو نافرمانی، اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور ایک اللہ کو راضی کرتے رہے. مولانا صاحب ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے بستی کے اندر ایک ایسا آدمی جس نے دنیا کے اندر اپنی بہن کا حق مارا، اپنا بھائی کا حق مارا، اپنا پڑوسی کا حق مارا. آج دنیا میں اس کے پاس دولت ہے، پراپرٹی ہے، بڑے عیش و آرام کی وہ زندگی گزار رہا ہے. ایک دن موت آئی، وہ مر گیا. وہ انسان جس نے کبھی غلط کام نہیں کیا، نہ اپنی بہن کا حق مارا،
ना भाइयों का हक मारा, ना पड़ोसियों का हक मारा। जो हमेशा नेक काम में मशगूल रहा, अच्छा काम करता रहा, उसके पास भी मौत आई, वो भी मर गया, वो भी कब्र में चला गया, ये भी कब्र में चला गया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, मौलाना तनवीर साहब आप बताइए, जिसने सारी जिंदगी पर गलत काम किया उसको सजा कहाँ मिली? उसने जो गलत काम किया था, उसने जो अपराध किया था, उसने जो क्राइम किया था, उसको उसके किए की सजा कहाँ मिली? और जिसने अच्छा काम किया था उसको उसका बदला कहाँ मिला? मेरे भाइयों, अब बात अब अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सवाल का जवाब दे रहा है। पहली चीज पहले याद रखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐ लोगों मौत तो सबके पास आएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ लोगों सुनो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ओ लोगों सुनो, एक ऐसा दिन है क़यामत के दिन, एक ऐसा दिन है आखिरत के दिन, जिसको लेकर आज मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में अगर कोई गलत काम करे, दुनिया में भले ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजार ले, दुनिया में उसको सजा मिले या ना मिले, उसके किए का बदला मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन तो है क़यामत के दिन मेरे भाइयों, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। उन लोगों, अगर दुनिया में तुम जर्रा बराबर भी अगर गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन उसका भी बदला तुमको दे दिया जाएगा। अगर दुनिया में जर्रा बराबर भी अगर गलत काम करोगे तो उसका बदला भी तुमको कल कयामत के दिन दे दिया जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम दुनिया में अच्छा काम करो या गलत काम करो, गुनाह करो या नेकी करो, लेकिन याद रखो तुम्हें दुनिया में बदला मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन है कयामत के दिन जिसके ऊपर आज हम और आप ईमान रखते हैं। मेरे भाइयों, उस दिन आपको आपके किए का बदला मिल जाएगा। इस आयत को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मौजूदा हालात के ऊपर तो मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता। हाँ मेरे भाइयों, आयत को, इस आयत की इस टुकड़ा को सामने रखकर मैं एक बात आप लोगों के सामने बताकर जा रहा हूं, लेकिन हाँ मेरी बातों को इशारा से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता, इसलिए भी नहीं बता सकता। मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए, इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि मौलाना साहब, तनवीर साहब झारखंड प्रोग्राम के लिए गए हैं, कहीं कोई मसला हमें मिल जाए, तनवीर साहब की जबान से कुछ बातें निकल जाए और हम उस बात को न्यूज रूम से चलाते रहे। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, वरना आप उठाइए सोशल मीडिया। मेरे भाइयों, एक औरत है ना, वो औरत का नाम क्या है? नुपुर शर्मा, गंदी औरत, हमारी नबी की जिंदगी पर भद्दी कमेंट करने वाली गंदी औरत, कटिहार की सरजमीन पर सबसे पहले सामने आकर जवाब देने वाला अगर कोई था, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तनवीर था। क्या हुआ मेरे साथ जानते हैं आप? जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। कटिहार के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, बड़े बड़े उलमा बुलाए गए, मुझ जैसा तालिबे इल्म को भी बुलाया गया। मेरे भाइयों, बड़े बड़े उलमा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद, और मुझे जैसा कम इल्म रखने वाला एक छोटा सा स्टूडेंट, छोटा सा तालिबे इल्म को भी बुलाया गया। मैं प्रोग्राम में गया, मुझे बताया गया, मुंतज़िमीन इजलास ने मुझे ये उन्वान दिया, ये मौजू दिया कि मौलाना साहब आज आपको फुल पावर दिया जाता है कि आज आप हमारे जलसे में और हमारी कॉन्फ्रेंस से, यानी कॉन्फ्रेंस से आप उनको जवाब देंगे, नुपुर शर्मा को, जो नुपुर शर्मा ने हमारी नबी की जिंदगी पर यानी भद्दी कमेंट की। और मेरे भाइयों, यकीन मानिए आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। उस दिन उस प्रोग्राम में खड़ा होकर ना मैं नुपुर शर्मा को मैंने गाली दिया था, ना मैंने उनके भगवान का अपमान किया था, ना मैंने रामचंद्र जी का अपमान किया था, ना मैं बुरा शब्द का प्रयोग किया था, मैं कुछ नहीं किया था। बस मैं रामचंद्र जी की जिंदगी से और सीता जी की जिंदगी से
कुछ सवाल उठा कर लाए थे, कुछ सवाल निकाल कर लाए थे और सवाल पूछे थे। सवाल पूछना मौलवी तनवीर का सबसे बड़ा गुनाह हो गया। मेरे भाइयों, उस वीडियो को इतना चलाया गया, इतना चलाया गया, 3 दिन के अंदर वो वीडियो 16 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा। और देखने के बाद उसी वीडियो को ये बीपी न्यूज हिंदी ने अपने न्यूज रूम से 3 दिन तक ये न्यूज चलाता रहा, ये खबर चलाता रहा। ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह हेट स्पीच दे रहा है, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहा है, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह रामचंद्र जी का अपमान कर रहा है, सीता जी का अपमान कर रहा है। मेरे भाइयों, जब ये बीपी न्यूज हिंदी ने 3 दिन तक ये न्यूज मेरे खिलाफ चलाता रहा, नतीजा ये निकला, हमारे बहुत सारे भोले भाले हिंदू भाई उनकी बातों पर आ गए, मेरे खिलाफ जुलूस निकाले, मेरे खिलाफ वो लोग पंचायत बैठा है, मेरे खिलाफ वो लोग सभा बैठा है, मेरे खिलाफ रास्ते में आए और कहा मौलवी तनवीर को सलाखों के अंदर डालो, मौलवी तनवीर को फांसी के फंदों पर लटकाओ, क्योंकि मौलवी तनवीर ने हमारा भगवान रामचंद्र जी और सीता जी का अपमान किया है, उनके ताल्लुक से बुरा बोला है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने तब सामने आया, उन लोगों को जवाब दिया, वो मेरे भोले वाले हिंदू भाइयों, यकीन मानो मैं मुसलमान हूं, मेरा धर्म मेरा मजहब हमें ये इजाजत नहीं देता, हमें ये तालीम नहीं देता कि किसी के धर्म को लेकर मैं बद्दी कमेंट करूं, किसी के खुदाओं को लेकर मैं किसी के खुदाओं को मैं गाली दूं। इसकी परमिशन और इसकी इजाजत हमारा मजहब हमारा धर्म हमें नहीं देता। बस मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है, जिस तरह नूपुर शर्मा ने हमारे नबी की और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर कमेंट की, बस मैंने तो सवाल पूछा है। वो सवाल ये है कि बताओ, जब रामचंद्र जी की शादी हुई थी तो रामचंद्र जी की उम्र क्या थी, और जब सीता जी की शादी हुई थी तो सीता जी की उम्र क्या थी। मेरे भाइयों, बस ये सवाल पूछना मेरे लिए गुनाह हो गया। मुझे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, मेरी माँ बहन के नाम पर मुझे गालियां मिलने लगी, रास्ता से निकलना, घर से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मुझे बुलाया गया, यह वार्निंग दी गई और बताया गया, अरे मौलवी तनवीर आलम, आपको ये वार्निंग दी जाती है, जब आप जलसे में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप किसी के बारे में एक शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं हूं। आज तक मैंने कभी नफरत की बात नहीं की, मैंने तो हमेशा मोहब्बत की बात की, कभी नफरत की बात नहीं की। लेकिन हाँ, ये भी याद रखो, उनके सामने तो नहीं बताया, पर मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने मन ही मन में बताया, मौलवी तनवीर जब तक जिंदा रहेगा, जब जब मुझ पर बात आएगी तो मैं सब्र कर लूंगा, मेरे परिवार पर बात आएगी तो मैं सब्र कर लूंगा, लेकिन जब बात इस्लाम पर आएगी, लेकिन जब बात मेरे नबी की जिंदगी पर आएगी, बात जब मुसलमानों पर आएगी तो मैं सामने आकर जवाब दूंगा। और आज मेरे भाइयों, समझदारों के लिए इशारा काफी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपके सामने, वरना आप भी मेरे खिलाफ शादी से रटने लगेंगे, आप भी मेरे खिलाफ लोगों को बताने लगेंगे, ये लोगों मौलवी तनवीर तो सिर्फ राजनीतिक बातें करता है। आप भी तो करेंगे ना। डर उन लोगों को लेकर नहीं है, मर जाऊंगा, डर तो अपने लोगों को लेकर है। अपने लोग भाई बदनाम करने में लगे रहते हैं, अपने लोग जेल के अंदर डालने में लगे रहते हैं, जाऊं तो किधर जाऊं, उधर जाऊं तो वो लोग, इधर आऊं तो अपने लोग, और अपने लोग इस सबसे ज्यादा घातक होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बात कहां से निकल रही है, जो चीज में बताना चाह रहा था आप लोगों के सामने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। बात यहाँ पर मैं आपके सामने करना चाहता था कि आज हिंदुस्तान की बात कर लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर हर रोज मॉब लिंचिंग की खबर आती है कि नहीं आती है? बस समझिए, आती है। लोग पकड़कर मुसलमानों को मार देते हैं। भाई क्यों मारा, कसूर क्या है इनका? जवाब मिलता है लव जिहाद में पकड़ा गया। अच्छा, लव जिहाद भी होता है कोई चीज? हाँ, लव जिहाद में। अच्छा, मार दिया। भाई इसको क्यों मारा? गौ तस्करी करता था। अच्छा, इसलिए मार दिया? बोला हाँ, इसलिए मार दिया। मुसलमानों को पहले मारते हैं, बाद में इल्जाम लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? मेवात के अंदर
7-8 रोज पहले की बात है, क्या हुआ मेवात के अंदर? मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बस हकीकत आपके सामने बता रहा हूं। मेवात के अंदर क्या हुआ? जुनैद और नासिर को पकड़ा, बेरहमी से मारा, कोई जुर्म नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई जुर्म नहीं था उन दोनों का। जुर्म बस इतना था कि मुसलमान था। बेरहमी से मारा, पीटा। पुलिस चौकी लेकर गए, देखा कि हालात बहुत खराब है, पुलिस ने वापस कर दिया कि जाओ इसको लेकर जाओ। अब क्या करें? वो लोग लेकर गए, एक बोलेरो के अंदर बैठा दिए दोनों को। सोचता भी हूं ना रूह कांप जाती है, सोचता भी हूं ना तो रूह कांप जाती है, न्यूज पढ़ता भी हूं ना तो आंखें नम हो जाती है। जुनैद और नासिर को जिंदा बोलेरो के अंदर बांध दिया गया सीट के साथ, पेट्रोल छिड़का और दोनों को जिंदा आग में जला दिया गया। आज तक उन दोनों को इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ ये तो एक वाकया नहीं है मेरे भाइयों, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आज मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलने वाला नहीं है मुसलमानों को। आज इनके परिवार, आज जुनैद और नासिर का परिवार इंसाफ के लिए गर्दन की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ मिलने वाला नहीं। आज मैं आप लोगों की झारखंड की सरजमीन पर बैठकर जुनैद और नासिर और जितने भी मुसलमान इन लोगों के हाथ मारे गए हैं या मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं, आज आप लोगों के बीच से उन लोगों को पैगाम देकर जाना चाहूंगा कि सुनो, ऐ लोगों सुनो, भले ही दुनिया में कोई इंसाफ करे या ना करे, भले ही दुनिया में इंसाफ मिले या ना मिले, सुनो, आज इन लोगों के पास ताकत है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। आज इन लोगों के पास पावर है, आज इन लोगों के पास हुकूमत है, आज इन लोगों के पास दौलत है। ये पावर से बच जाएंगे, दौलत से बच जाएंगे, हर चीज से बच जाएंगे। दुनिया में ना तुम लोगों को इंसाफ मिलने वाला है और ना दुनिया में इन लोगों को सजा मिलने वाली है। पर मैं आप लोगों को आपका बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते ये तसल्ली दे रहा हूं, बस इतना समझ लेना कि दुनिया में सवाब यानी उन लोगों को, उन दरिंदों को, उन जानवरों को सजा मिले या ना मिले और आप लोगों को इंसाफ मिले या ना मिले, पर याद रखो व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। एक ऐसा दिन है, मायूस ना होना, मायूस ना होना, मायूस ना होना। एक ऐसा दिन है, रब की बारगाह है, रब की अदालत है, कयामत का दिन है, आखिरत का दिन है, जिस दिन ना किसी की हुकूमत चलेगी, ना जिस दिन कोई किसी का पावर काम आएगा, जिस दिन ना किसी की दौलत काम आएगी, ना जिस दिन किसी की यानी फौज ना काम आएगी। याद रखो उस दिन इन लोगों को भी इंसाफ मिल जाएगा, आपको भी इंसाफ मिल जाएगा। इसलिए सब से काम लीजिए, बस इतना कहकर जाओ, सब से काम लीजिए, इंशाअल्लाह व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, इंसाफ जरूर मिलेगा। बात आगे बढ़ी, मालूम नहीं मुझे कितने बजे खत्म करने से, अच्छा फजर तक, अरे बाप रे बाप, जब तक चलाना चाहिए जी 3:30 तक। अगर 3:30 तक खत्म करना है इसका मतलब 5 मिनट बाकी है मेरे पास। अच्छा तो चलिए 5-10 मिनट इंशाल्लाह और बोल लेता हूँ आपके सामने, रात काफ़ी हो रही है। और मैं ना जहाँ जाता हूँ ना मैं बोलता हूँ कि भाई प्रोग्राम ना 2 बजे से पहले ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, इतना दूर से आया हूँ। अब एक बात तो ये है कि रात के 2:30 बजे ना इंसान बोलने लायक होता है ना इंसान सुनने लायक होता है। मैं तो बोल लेता हूँ, ये अलग बात है कि भाई गैर शादीशुदा इंसान हूँ, नौजवान हूँ, बोल लेता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन भाई आदमी बोलने लायक होता नहीं है। बड़ी परेशानी होती है रात के 2-2, 2:30 बजे। और आपको मालूम है हर रोज सफर करना, रात जागना, फिर बोलना, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन डर भी सताता है कि भाई नहीं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि आए तनवीर साहब टाइम पास करके चले गए। बोलना पड़ता है, क्या करें। किसी ने कहा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग, मुझे तो मालूम नहीं है। तो जो बोल रहा है बस 4 चीजें समझ लीजिए, सुन लीजिए आप। पहली चीज वइन्नमा
कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, दूसरी चीज वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तीसरी चीज याद रखो फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ मेरे भाइयों, दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, दुनिया की दौलत के पीछे और दुनिया की प्रॉपर्टी के पीछे भागने वालों, क्यों भाग रहे मालूम है? इसलिए भी भाग रहे हैं, दुनिया में जिसके पास जितना पैसा है, जितनी दौलत है, वो उतना बड़ा कामयाब इंसान है। बोलते कि नहीं बोलते भाई? बड़ा आपके सरैया में सबसे ज्यादा इज्जत किन्हें मिलती है, किन्हें दी जाती है? देखेंगे हालांकि बेनमाजी है, हरामखोर है, सूदखोर है, लेकिन बंदे के पास दौलत है, पैसा है, इज्जत मिलती है। क्यों जानते हैं? लोग कहते हैं भाई बड़ा कामयाब है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में बताऊं, अगर दौलत का होना, पैसे का होना, प्रॉपर्टी का होना अगर कामयाबी की दलील होती तो रब्बे काबा की कसम कारून से बड़ा कामयाब शख्स कोई ना होता, फिरौन से बड़ा कामयाब शख्स कोई ना होता। पर कामयाब कौन? अल्लाह फरमाता है लोगों, दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, ओ नादानो, ओ बेवकूफो, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ लोगों, कामयाब तो वो है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे, जो दुनिया में रहकर आखिरत की परिस्थिति करे, यानी परिस्थिति ने जो आखिरत में जो दुनिया में रहकर आखिरत की यानी तैयारी करे, आखिरत को सामने रखकर जो अपनी जिंदगी गुजारे। और अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के रोज, आखिरत के रोज, जिसे जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, फक़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब है, वही इंसान कामयाब है, वही इंसान कामयाब है। ओ मेरे भाइयों, एक बात मैं आपके सामने बताऊं, अगर एक इंसान जन्नत के अंदर चला जाए तो जन्नत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं और जहन्नम से बड़ी कोई नाकामी नहीं। वो लोगों फिर से सुनो, जन्नत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं और जहन्नम से बड़ी कोई नाकामी नहीं। अब फैसला आपके हाथ में, क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं या आप जहन्नम के अंदर जाना चाहते हैं? याद रखो मेरे भाइयों, रब भी जानता है और मेरे बंदो, जन्नत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर हमें और आपसे बयान फरमाता है, खास करके मोमिनों से बयान फरमाता है, क्या मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ सरैया के मर्दों औरतों सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगों, तुम अपने आप को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी, अपनी औलादों को भी, अपने बेटे और बेटियों को भी, अपनी बीवियों को भी जहन्नम की आग से और जहन्नम के अजाब से बचाओ, क्योंकि जहन्नम से बड़ी नाकामी और कुछ नहीं। और मेरे भाइयों याद रखो, जहन्नम की जो आग है वो इतनी खतरनाक है, वो इतनी भयानक है कि जहन्नम की आग, मेरे भाइयों, दुनिया में अगर हम और आप आग जलाते हैं तो पेट्रोल से जलाते हैं, डीजल से जलाते हैं, मिट्टी के तेल से नहीं, केरोसिन तेल से जलाते हैं, लकड़ी से जलाते हैं, लेकिन वो जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है। रब फरमाता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग यानी पेट्रोल से न जलाई जाएगी, ना गैस से जलाई जाएगी, ना मिट्टी के तेल से जलाई जाएगी। उन लोगों, इंसानों से जलाई जाएगी और पत्थर से जलाई जाएगी। कैसा पत्थर? जो झारखंड में देख रहे हैं, कैसे पत्थर होंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो गंधक के पत्थर होंगे, गंधक, जिसको अरबी में अल-किब्रीत बोला जाता है। वो पत्थर इतना हाई फ्लेमेबल पत्थर होता है कि अगर आग के करीब भी उस पत्थर को ले जाया जाए, आग भड़क उठेगी, आग भड़क जाएगी। वो पत्थर इतना हाई फ्लेमेबल पत्थर होगा मेरे भाइयों। इसलिए तो रब फरमाता है, दुनिया की कामयाबी के पीछे मत भागो, उन लोगों, आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ दुनियादार मुसलमानों, ऐ दुनिया परस्त मुसलमानों, दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वालों, सुनो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और लोगों, ये दुनिया की जिंदगी तो बस धोखा है,
बस धोखा है। मैं आपको कैसे समझाऊं, कौन से भाषा का इस्तेमाल करूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आज आप इतने नादान हैं, इतने बेवकूफ हैं कि आज बात तो आप सुनते हैं लेकिन भेजे में बात घुसती नहीं है। और लोगों, रब फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब कुरान में फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। और लोगों, दुनिया के पीछे मत भागो, ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया बेवफा है। आज तक ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं की है, ये दुनिया तुम्हारे साथ भी वफा नहीं करेगी। और लोगों, कैसे समझाओ, कल जब सुबह होगी फजर की नमाज पढ़ लेना और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने गांव के कब्रिस्तान में चला जाना। तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान में जाकर ऐसी कब्रें भी आपको नजर आएंगी जिसके अंदर जो आज मौजूद है, जिस कब्र के अंदर आज जो दफन है, वो कल आपकी तरह दुनिया में जिंदा था, वो आपकी तरह दुनियादारी में बिजी था। आज वो कब्र के अंदर सोया हुआ है और कल जाकर आप भी उसी कब्र के अंदर सोए हुए होंगे। इसीलिए तो रब फरमाता है दुनिया के पीछे मत भागो, मत भागो दुनिया के पीछे। ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज है, जिसने दुनिया के पीछे पड़ गया उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई मेरे भाइयों। इसलिए दुनिया के पीछे मत पड़ो, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो। किस दिन से? जिस दिन तुम सब के सब रब की बारगाह में जमा किए जाओगे। अब सवाल पैदा ये होता है डरूं तो क्यों डरूं? मैं डरो तो इसलिए डरो क्योंकि रब फरमाता है वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। कयामत से डरो तो इसलिए भी डरो क्योंकि रब फरमाता है कुरान करीम के अंदर यौम तरौनहा तदहल कुल्लु मुर्जिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नासु सुकारा। इसलिए भी डरो मेरे भाइयों। दिल तो करता है कि और देर तक आपके सामने बात करूं, पर 3:30 बजे तक का जो मुझे टाइम मिला, मेरा भी 1 घंटा हो गया, रात भी काफी हो गई, आपको भी जाना है, आराम करना है, फजर की नमाज आपको भी पढ़नी है, मुझे भी यहां से रवाना होना है बरकैफ। हालांकि मन तो नहीं भरा, दिल तो नहीं भरा, पर इस उम्मीद के साथ आज आपके यहां से जरूर मैं रुखसत दूंगा कि इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा, बाहयात रहा, फिर कभी आपके बीच आऊंगा और इंशाअल्लाह लंबी देर तक आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूंगा। और पहले ही कमेटी से बताऊंगा कि भाई मुझे 12 बजे से पहले स्टेज में कम से कम लाया जाए, ताकि लोगों के सामने मैं भी अपनी बात यानी मन के मुताबिक रख सकूं। बहरकैफ बातें आगे ना बढ़ाते हुए 1 घंटे के अंदर मैंने जो आपको पैगाम देना चाहा, जो मैसेज देना चाहा, इधर उधर की बातें तो मैंने बहुत सारी लाए, लेकिन मैं इसलिए भी कि मैं आपको यही पैगाम, यही मैसेज में आपको देना चाहा कि ये दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया से जाना है आखिरत की तरफ, और आखिरत की ज़िंदगी ही दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। और दुनिया के अंदर हमें सिर्फ दुनियादारी करने के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजे हैं। दुनिया में हम जैसे खेती करेंगे वैसे फसल हम आखिरत में काटेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे भाइयों, दुनिया में एग्जामिनेशन के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला भेजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे इम्तिहान लेंगे जिस घर से। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को आखिरत को सामने रखकर और आखिरत की तैयारी करने की तो हम सबको तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। और शाम से लेकर अब तक जितनी भी बातें हुई इलाहुल आलमीन लास्ट के टाइम में तुझसे दुआ करता हूँ कि तो उन तमाम बातों पर हम सामीन को भी, हम उलमा को भी, हर इंसान को, जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद रहें, तू सबको उन सब बातों पर अमल करने की तू हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन आज पूरे भारत वर्ष के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर
مسلمان آج ظلم کے شکار ہو رہے ہیں. اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے مال و عزت کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت عطا فرما. اے الہ العالمین تو ہم تمام کو بس اور بس اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو راستہ ہمیں ڈائریکٹ جنت تک لے کر جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.